جی تو آج ہم یہ فلاور والا یہ ٹیبل کلوتھ بنائیں گے انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، بہت ہی خوبصورت اس کا لک ہے۔ ضرور آپ اس ڈیزائن کو ٹرائی کیجئے گا۔ دیکھ لیجئے آپ، اس کو ہم نے 2 کلروں میں بنایا ہوا ہے۔ اس کو جو وہ بہنیں ہیں جو نیا سیکھنے والی ہیں کریشیا، وہ بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ سمپلی اس میں ڈبل کریشیا اور چین کے ساتھ ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے۔ تو وول ہم نے استعمال کی ہے 3 پلائی کی، دونوں جو کلر ہیں وہ 3 پلائی کی وول ہے، اور کریشیا کا نمبر ہے ہمارا 2.5 mm کا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اس میں 2 راؤنڈ ہم نے بنائے ہوئے ہیں فلاور کے اس طرح سے، یہ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں بنائے ہوئے ہیں۔ تو کلر وغیرہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے جو بھی آپ کو اچھے لگے وہ آپ یوز کر لیجئے۔ اس میں ہم نے پیچ اور میرون کلر اٹیچ کیا ہوا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے جی۔ تو 2 کلروں میں آج کریشیا پہ اسمال سائز میں کریشیا کا جو ٹیبل کلوتھ ہوتا ہے وہ بنائیں گے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تو کریشیا کا نمبر ہے ہمارا 2.5 mm کا، اور 3 پلائی کی ہم اس میں وول استعمال کریں گے۔ 2 کلر ہم اس میں یوز کریں گے، تو آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس میں وول استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کلر کا یوز کرتے ہوئے اپنی ڈیزائن کو شروع کریں گے۔ تو یہاں پر ہم اس طرح سے کر کے میجیکل رنگ بنائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے، تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ بہنوں تک پہنچتا رہے۔ تو اس طرح سے ہم نے میجیکل رنگ بھی بنا لی اور ایک چین بھی بنا لی۔ یہاں پر 2 3 ہم نے چین بنا لی، اور اسی میں ہی ڈبل کریشیا بنائیں گے اس طرح سے۔ تو یہاں پر یہ 2 ڈبل کریشیا بن گئے، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ٹوٹل ہم نے اس میں 12 ڈبل کریشیا بنا لیے۔ اس 3 چین کو بھی ڈبل کریشیا میں کاؤنٹ کرتے ہیں، تو اس طرح سے یہ 12 ڈبل کریشیا ہو گئے۔ اب یہاں پر اس دھاگے کو کھینچ لینا ہے، پھر یہاں پر یہ جو 3 چین بنائی تھی اس کی اوپر والی چین میں سلپ اسٹچ کر لیں گے اس طرح سے۔ تو راؤنڈ ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہاں سے ہی ہم اس کا دوسرا راؤنڈ شروع کریں گے، جہاں پر سلپ اسٹچ کیا ہے وہاں سے ہی ہم 3 چین بنائیں گے، اور اسی میں ہی ڈبل کریشیا بنائیں گے۔ تو 2 ڈبل کریشیا ایک چین کے اوپر ہو گئے اس طرح سے۔ اب اس کی دوسری والی چین میں بھی 2 ڈبل کریشیا بنائیں گے، پھر اس کی تیسری والی چین میں بھی 2 ڈبل کریشیا بنائیں گے۔ تو ہر ایک ڈبل کریشیا کے اوپر 2 ڈبل کریشیا بناتے ہوئے پورے راؤنڈ کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ 2 ڈبل کریشیا بناتے ہوئے راؤنڈ کو کمپلیٹ کریں گے جی۔ تو اس طرح سے بناتے ہوئے پورے راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ ہر ایک ڈبل کریشیا کے اوپر 2 ڈبل کریشیا بناتے ہوئے راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو 3 چین بنائی تھی اس کی اوپر والی چین میں اس کو سلپ اسٹچ کر لینا ہے اس طرح سے۔ تو یہ راؤنڈ ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہاں سے ہی ہم اس کا اگلا راؤنڈ شروع کریں گے۔ 1 2 3 چین بنا کر اس کا یہ جو دوسرا ڈبل کریشیا ہے اس کے اوپر 2 ڈبل کریشیا بنائیں گے، 1 2، پھر اس ڈبل کریشیا کے اوپر ایک ڈبل کریشیا بنائیں گے، اگلے والے ڈبل کریشیا کے اوپر 2 ڈبل کریشیا بنائیں گے، ایک میں ایک ڈبل کریشیا بنایا، اگلے والے میں 2 ڈبل کریشیا بنائے۔ تو اسی طرح سے پورا راؤنڈ کمپلیٹ کرنا ہے۔ ایک میں ایک ڈبل کریشیا، دوسرے والے میں 2 ڈبل کریشیا، پھر اس میں ایک ڈبل کریشیا، یہاں پر 2 ڈبل کریشیا، ایک ڈبل کریشیا، 2 ڈبل کریشیا۔ تو اسی طرح سے پورا راؤنڈ ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے جی۔ تو اس طرح بناتے ہوئے پورے راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ ایک میں ایک ڈبل کریشیا اور دوسرے والے میں 2 ڈبل کریشیا، تو راؤنڈ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب لاسٹ میں ہم نے 2 ڈبل کریشیا بنائے، کیونکہ یہاں پر یہ جو 3 چین بنائی تھی یہ اس ڈبل کریشیا کے اوپر ایک ڈبل کریشیا کے برابر کاؤنٹ ہوگی۔ اب یہاں پر اس کی اوپر والی چین میں سلپ اسٹچ کرنا ہے، تو اس طرح سے یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہاں سے 1 2 3 چین بنا کر اس کا یہ جو دوسرا ڈبل کریشیا ہے یہاں پر ایک ڈبل کریشیا بنائیں گے، پھر یہاں پر اس ڈبل کریشیا کے اوپر 2 ڈبل کریشیا بنائیں گے۔ اب یہاں پر اس میں ایک ڈبل کریشیا بنائیں گے، اگلے والے میں بھی ایک ڈبل کریشیا بنائیں گے،
फिर यहाँ पर इसके तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। पहले हमने एक बनाया, उसके बाद एक बनाया, फिर यहाँ पर 2 बना लिए, फिर एक बनाया, फिर यहाँ पर 2 बना लिए। तो इस तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया था, फिर 1 डबल क्रोशिया और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो इस तरह से लास्ट में हमारे 2 डबल क्रोशिया आने चाहिए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन है, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर इसका ये जो चौथा वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 3 के बाद हम यहाँ पर चौथे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। पहले हमने एक बनाया था, फिर उसके बाद 2 बनाए, फिर यहाँ पर 3 बन गए। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है हमारी बढ़ती जाएगी। अब जैसे अगला राउंड होगा उसमें हम 4 बनाएंगे, फिर अगला राउंड होगा उसमें 5 बनाएंगे, फिर उसके बाद 2 बनाएंगे। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन बढ़ती जाएगी। तो मैं राउंड को कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। 3 डबल क्रोशिया के बाद हमने 2 डबल क्रोशिया बना ली। अब लास्ट में हमारे 2 ही डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी, इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से ही हम अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चौथे डबल क्रोशिया में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 4 के बाद ये जो 5वां डबल क्रोशिया आएगा, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर आगे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये 5वां डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक साथ। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट होगा। इसके हमने 1 2 3 4 5 6 राउंड बनाए हैं, 7 8 9 3 राउंड और बनाएंगे। तो टोटल हमने 9 राउंड इसमें बना लेने हैं, जैसे हम बनाते जा रहे हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर अगले राउंड में 5 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले राउंड में 6 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले राउंड में 7 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इसकी जितनी भी आप लोगों ने लेंथ बनानी हो, उस हिसाब से आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हमने ये राउंड बनाए हुए हैं, तो इस तरह से हमने इसमें टोटल 9 राउंड बना लेने हैं। मैं इसके 9 राउंड कंप्लीट करती हूँ। अगर आप लोग इससे बड़ा थालपोश वगैरह बनाना चाहते हैं, तो इसी तरह आप इसको बढ़ाते जाएँ। तो मैं इसके टोटल 9 राउंड बना लेती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसके 9 राउंड कंप्लीट कर लिए। मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हमने इसमें 9 राउंड बना लिए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद आगे 7 डबल क्रोशिया बना लिए, 7 के बाद फिर हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बनाया। तब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन की, इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन बनाकर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया, पूरा राउंड इसी तरह से ही कंप्लीट करेंगे। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरा हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। सिंगल क्रोशिया का ये राउंड था। अच्छा, अगर आप इसको ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं, ये जो हमने डबल क्रोशिया के राउंड बनाए हैं, जैसे हमने यहाँ पर 9 ये राउंड बना लिए, ठीक है। अगर आप इससे बड़ा थालपोश बनाना चाहते हैं, तो यहीं से ही आप इस डिज़ाइन को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने 9 राउंड बनाए, इसके आप आगे जितने भी राउंड बनाना चाहें आप इस हिसाब से बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो इसके ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर यहाँ पर इसके ऊपर हमने एक चेन बनाई थी, तो इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इसको इस तरह से। तो राउंड हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2
3 4 5 5 यहाँ पर चेन बनाकर अब एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन बनाकर फिर एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर एक सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट होगा। एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में डबल क्रोशिया बना लेना है और यहाँ पर 2 चेन बना लेनी है। पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर लास्ट में हमारा एक ही ये सिंगल क्रोशिया बचता है, इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, तो 1 2 तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस धागे को हमने छोड़ देना है इस तरह से। अब यहाँ से हम दूसरा कलर इसमें अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम इसको स्लिप नट बांध के हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे इस तरह से करके। अब यहाँ पर डबल क्रोशिया के साथ यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर इस धागे को पकड़ लेना है। अब ये जो 2 चेन का गैप है, इसमें हम इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, फिर से इसको बल दिया इसी गैप में, इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर से इसको बल दिया इसी गैप में, इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाया। यहाँ पर ये 4 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर अगला ये जो 2 चेन का गैप है, इसमें हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। बल दिया इसमें इस तरह से डाल के, अब यहाँ पर 2 धागों में से बना लेंगे। ये 3 धागे हो गए, फिर से इसको बल दिया इस तरह से, अब यहाँ पर 2 में से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। 2 चेन बनाकर अगले वाले इस 2 चेन के गैप में फिर से हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो इसी तरह से ये वाला राउंड हमने कंप्लीट करना है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। 2 चेन, फिर यहाँ पर इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ पर ये 4 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमारा पीच कलर है और ये मैरून कलर है इस तरह से। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो 2 हमने चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो हमने चेन बनाई थी, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो राउंड हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस धागे को हमने छोड़ देना है, इसको बल्कि काट लेते हैं। ऊपर से हम ये वाला कलर फिर से अटैच करते हैं। अब यहाँ से ही हमने ये जो पीच कलर था हमारा, इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे इस 2 चेन के गैप में इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ। फिर यहाँ से यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करते हैं इस तरह से करके। यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करते हैं। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद अगला ये जो 2 चेन का गैप है, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर अगले इस गैप में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन कर ली। अब ये जो 6 चेन बनाई थी, 1 2 3 चेन स्किप करेंगे और यहाँ पर इसकी चौथी वाली चेन में इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। और अगर यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 चेन बचती है और तीसरी वाली चेन में हम स्लिप स्टिच करते हैं इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर बगैर चेन किए हुए अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जितने भी हमारे 3 चेन के गैप है, उन सब में हम 3 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे।
जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये जो दरमियान वाला इसका डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 1 2। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर बना लिए। ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर। अब यहाँ से ही हम इसमें एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद ये जो इसका दरमियान वाला डबल क्रोशिया है यहाँ पर इस गैप में हमने 3 डबल क्रोशिया डाले हुए हैं। ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ से ही एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद फिर इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दरमियान में यहाँ पर एक चेन भी बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैं आपकी इसकी थोड़ी सी लेंथ दिखा देती हूँ कि कितना हमने बनाया हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन 10 इंच तक बना है। तो अभी हम इसको आगे बनाएंगे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप ये वाले जो दरमियान वाले जो राउंड है ये आप इससे ज़्यादा बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे और इस धागे को काट लेंगे। ऊपर से हम फिर से इसके दूसरा कलर अटैच करेंगे। ये वाला जो मैरून कलर हमने लगाया था ये वाला अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम इस कलर के इस तरह से करके स्लिप नट बांध के हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। ये वाला जो गैप है इसमें एक चेन के गैप में फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाकर अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत इस डिज़ाइन का लुक आया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने 5 चेन कर ली। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद इसकी एक चेन में भी स्लिप स्टिच कर लेना है, दूसरी चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब ये जो अगला 5 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इसको पलट के अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर इसको सीधा करेंगे। अब यहाँ से हम 1 2 चेन बनाकर इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया 2 चेन फिर इसी गैप में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर इसी गैप में इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर इसमें 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाकर इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर अगले इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये एक फ्लावर बनके तैयार हो जाएगा। तो आगे हम इसमें इसी तरह से ये फ्लावर बनाएंगे। फिर यहाँ से 3 चेन करेंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद अगले इस 5 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 चेन करके इसको पलट के अब यहाँ पर ये जो लास्ट वाला इसका डबल क्रोशिया है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे।
सीधा करेंगे इसको। अगर सीधा करते हैं तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया होता है, अगर इसको इस बैक साइड से करते हैं तो यहाँ पर ये इसका लास्ट डबल क्रोशिया बनता है। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे और इस गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में स्लिप स्टिच, फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 2 चेन बनाकर अब इसी गैप में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर से 2 चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो 3 पत्तियों वाला ये फ्लावर है, इस तरह से हम इसको बना लेंगे। अब यहाँ पर 2 चेन करके इसी गैप में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। 1 2 3 चेन बनाकर अभी अगला ये जो 5 चेन का गैप है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। हम इसको कंप्लीट करते हैं। बहुत अच्छी लगती है ये फ्लावर वाली डिज़ाइन, तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ वीडियो को शेयर किया करें। तो हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। फ्लावर वाला ये राउंड था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने फ्लावर बनाने के बाद 3 चेन बना ली। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे। सॉरी, यहाँ पर हम इस धागे को काट लेते हैं, नहीं, यहाँ पर हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करके फिर यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से आगे हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बना के फ्लावर की बैक साइड से। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें हम यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाकर फिर यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 फ्लावर की बैक साइड में 5 चेन बना लेनी है। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम 1 2 3 4 चेन बनाकर फिर ये जो 3 चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 5 चेन करेंगे, 5 चेन बनाकर फ्लावर की इस साइड पे यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया किया फ्लावर की बैक साइड में 5 चेन करके, फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन थी इसमें सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर 4 चेन करके इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर फ्लावर की बैक साइड में यहाँ पर 5 चेन की, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर 4 चेन की और यहाँ पर ये जो 3 चेन थी इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। क्योंकि यहाँ पर हम एक फ्लावर की और एक राउंड बनाएंगे इस कलर से, तो इंशाल्लाह हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम फ्लावर वाला राउंड शुरू करते हैं। तो इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो फ्लावर की बैक साइड में हमने 5 चेन कर ली। अब यहाँ पर लास्ट में 4 चेन कर ली। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे, ऊपर से हम इस तरह का ये जो कलर है पीच कलर ये अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम इसका पीच कलर जो है वो अटैच करेंगे इस तरह से। हम स्लिप नट बांध के हम यहाँ पर ये जो फ्लावर की बैक साइड पे हमने ये चेन बनाई थी इसमें हम यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 यहाँ पर चेन बना के फिर इसको बल देंगे और यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी इसके दरमियान में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया सेम इसी तरह से बना लेना है। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 चेन करेंगे, फिर इसको पलट के अब यहाँ पर ये जो लास्ट वाला इसका डबल क्रोशिया है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर इसको सीधा करेंगे, यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, 1 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, फिर इसी गैप में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में स्लिप स्टिच, फिर से 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन,
फिर इसी गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने 3 पत्तियां बना ली। यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर अब इसकी फ्लावर की बैक साइड में ये जो 5 चेन बनाई थी यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंपली इसी तरह से ये फ्लावर का राउंड ये बनता जाएगा जैसे हमने ये वाला बनाया इसी तरह से, पर इसको बैक साइड से इस तरह से जो हमने चेन बनाई है उसमें बनाएंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद आगे ये 4 चेन का गैप है, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और जैसे ये वाला फ्लावर बनाया था इसी तरह हम बना लेंगे। यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, 5 चेन, इसको पलट के यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। इसको सीधा करेंगे, फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन, इसी गैप में स्लिप स्टिच, फिर 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेना है। 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद अब फ्लावर की बैक साइड में हमने यहाँ पर ये चेन बनाई थी जो 5, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आता है। ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करके फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। कलर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी आप इसमें लगाएंगे अच्छे लगते हैं। और मुझे ये मैरून और पीच कलर जो है ये बहुत खूबसूरत लगा, इसीलिए मैंने ये कलर अटैच कर लिया इसमें। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो इस तरह से बनाते हुए पूरा हमने इसका ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। बहुत खूबसूरत इसका लुक आया है, आप देख लीजिए। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट वाला ये फ्लावर भी बना लिया। यहाँ पर हमने 3 चेन कर लिए और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हमारा ये जो डिज़ाइन था ये यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लिया है हमने। तो यहाँ पर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लिया। अब मैं आपको फिर से इसकी माप करके दिखाती हूँ कि ये जब हमने यहाँ से बनाया, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बनाया था तो 10 इंच तक था। अब जब इसमें हमने फ्लावर वाला ये राउंड बनाए तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि तकरीबन 13 इंच तक इसकी जो लेंथ है वो बनी हुई है। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। तो इस तरह से हमने इसमें ये राउंड बना लिए हैं। अगर आप इसमें तीसरा राउंड भी इसी तरह से बनाना चाहते हैं फ्लावर वाला, तो यहाँ पर ये जो पीच कलर का धागा है इसके साथ ही आप इसका एक और राउंड बना लें। जैसे हमने यहाँ पर इसकी बैक साइड में जिस तरह ये ब्राउन कलर से हमने मैरून कलर से हमने ये चेन बनाई, 5 चेन और 4 चेन जिस तरह बनाई, तो इस कलर से आप इसकी डिज़ाइन बना के फिर उसके बाद आप ये वाले जो फ्लावर है मैरून कलर वाले वो आप बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।